हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मैंने ये जनरली ऑब्जर्व किया है इंटरव्यूज़ में। बिकॉज़ इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि यू एंड अप टेलिंग एवरीथिंग एंड आइडियली यू शुड, पर्टिकुलरली इफ यू आर डूइंग विद मी और विद एनी अदर असेसर हू इज़ ट्रेनिंग यू, आपको खुल के बात करनी चाहिए। तो एक मेजर समस्या जो है, जो जेनेरिक है, वो ये है कि सर आई ओवरथिंक। अब आप ये समझिए कि व्हेन यू आर ओपनिंग दिस टॉपिक and which you don't have control on. So I will not advise you to close this topic as in close it. I will advise you to work on it so that this topic doesn't stay for you in your subconscious. If it is there in your subconscious, it will come out. So one major thing which I hear from students is that, sir, I overthink. Overthinking क्या है? It is a prelude to stress, maybe semi-depression, mental stamina. वहीं तो है ये जा रहा, कहाँ जाएगा और क्या है? क्या है मतलब ओवरथिंकिंग का? आप किसी भी अपने स्क्रिप्चर्स में चले जाइए, हमारी फ़िलॉसफ़ी में चले जाइए, हमारी ओरिजिन में जाइए, कहीं पे भी आपको कोई भी कैंडिडेट, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा एक्चुअली कहें तो इवेंट हुआ जिसमें पांडवों ने अपनी सारी संपत्ति गँवा दी, अपना राज्य गँवा दिया और एक तरह से द्रौपदी को भी उन्होंने लॉस किया। व्हिच वाज़ रॉन्ग एंड द्रौपदी की बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएशन की गई। परंतु क्या कहीं पे भी ये मेंशन आपने देखा कि अ, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं वो लोग, स्ट्रेस में हैं, वो लोग सोच रहे हैं? नहीं। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। दे रादर यूज्ड दिस टाइम ऑफ 12 इयर्स, जो भी उनका पीरियड था, उसमें उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज एंड नाउ वी विल वर्क एंड नाउ वी सी देयर इज अ वॉर, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द वॉर। दिस इज हाउ दे यूज्ड इट। दिस इज हाउ आवर scriptures tell us. This is how any you can say a great warrior or a great philosopher or any great achiever will talk about. Moment you are getting into this zone of overthinking, one thing is for sure, that you are under some tremendous pressure which is holding you back, which is taking you back to your thought process. It is pinging you, ping kar raha hai. That is what is called living in the past. So it is ultimately meaning to say that you are not able to come out of a past which is holding you back, which you wanted to do, which is not happening, or which has not happened. It can be related to you at a personal level in many ways. It can be the pressure of performance, that you wanted to score more, you didn't get more, or you wanted to get into IIT or JEE, or you couldn't qualify NDA, CDS. यही सवाल होंगे generally. It's not gonna help you, and it's better that you make a peace with it. Overthinking is not gonna help you. It doesn't help anyone. It has not helped anyone at all. When you say I introspect, when you say I analyze, then as a fighter, as a warrior, you're going back to the drawing board to analyze what were the mistakes made. That is a good thing. That is called introspection. But when you overthink, is basically you are getting mentally disturbed by this fact, and you're going back to it again and again and again, and subconsciously your mind is not letting you to move ahead. It will have effect on your self love. It will definitely have an effect on your self confidence. If self confidence is down, your initiative will go down, your ability to influence the group will down, your speed of decision will be down, and it will ultimately have a very cascading effect on your liveliness. मेरा ये मानना है कि अगर लाइवलीनेस गई किसी की फॉर सम रीजन, अगर अंदर का वो दीपक बुझा या डिम हुआ, वो बड़ा मारेगा आपको। एसएसवी के पर्सपेक्टिव से तो मारेगा ही, रियल लाइफ में भी आपकी जो वे ऑफ लिविंग है, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, थिंकिंग है, कंडक्टिंग है, सब अफेक्ट होगी। सारे ऑयल क्यूज पे एक प्रहार करेगा ही। और आप ना चाहते हुए भी इसके वेब में फंसेंगे,
वो वेब ऐसा होगा, वो ऐसा वेब होगा जो आपकी प्रोग्रेस को इम्पेडिमेंट करेगा। हो सकता है आपका नहीं हुआ। आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो it will have an effect on your performance. While you're studying for 4 hours, your output will go down to half an hour. आपका माइंड वहाँ है ही नहीं। लिविंग इन द मोमेंट की जो बात होती है वो यही तो होती है कि ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, आपने गलतियाँ एक्सेप्ट किया, आपने समझ गए, अब आप लिव इन द मोमेंट कर रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं और तैयारी में ही आप पूरी। मेरे को बहुत अच्छा एक स्टूडेंट का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, नितेश का। वो अभी भी कोस्ट गार्ड में रिकमेंड हुआ है, अभी एयरफोर्स के लिए जा रहा है, वहाँ भी रिकमेंड होगा उसके बाद, बिकॉज़ उस बंदे ने कभी भी ये पद्धति नहीं अपनाई कि अब मैं सोचता रहूँ। उसने एक्सेप्ट किया, गया, स्क्रीन आउट हो गया, बट मैंने कहा था यू विल बी रिकमेंडेड इफ यू आर स्क्रीन्ड इन, जो कि हुआ भी। How he used his time? He used his time productively. He used his time in teaching students, generating resources, funding his studies, setting up a library, going to a library, working in that, working for the future exams. तो ये प्रोग्रेसिव थॉट है। आपको कोई भी आईओ या सहायक या जीटीओ तभी रिकमेंड करेगा जब आप प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, तो तब रिकमेंड नहीं करेगा अगर आप रिग्रेसिवली चल रहे हैं, पीछे की पास्ट की दुनिया में घुसे हुए हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग आपको लग रहा होगा कि मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, बट जनरली मैंने देखे हैं जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं रिकमेंड, उनकी सिचुएशन आपसे ज़्यादा खराब मैंने देखी है। जो आज आईएमए में है, मेरा एक स्टूडेंट है ओंकार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ओंकार इज़ एक्चुअली यूज्ड टू डू फार्मर, यूज्ड टू बी अ फार्मर, यूज्ड टू वर्क इन द फार्म्स एंड बहुत कठिनाइयों के दौर से मदर वाज़ नॉट देयर। And he used to work in the home also because his elder brother was working, his father was not. His father was also helping him, but he was looking after the home, he was looking after the food, he was looking after the running of the home, looking after the farm, and fighting back with the sole intention that I have to join armed forces. And he achieved it in TGC. Now he is in IMA. I'm so proud of him. I have never seen a person who says कि I'm in the zone of thinking and it has helped me. ऐसा नहीं होगा। तो वो रामाधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियाँ जो मैं बार-बार आपको सुनाता हूँ रश्मि रथी से कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं, अब रण होगा, रण। आप एक युद्ध में हैं, युद्ध में रण ही करना है। आप एक बार रण में आप पराजित हुए हैं, तो आपको फिर से रण करना है और उस पराजय से सीखते हुए रण करना है। बट करना सिर्फ युद्ध ही है। वो ओवरथिंकिंग वाला जो है ना, वो फिर आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आता है मेडिटेशन। फिर कान खड़े होंगे आइयों के। भाई क्यों मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन? कैसा मेडिटेशन? आप अगर बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एडवेंचरस हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें आप बहुत एक्सर्ट करते हैं और आप मेडिटेशन करते हैं टू देन इट वर्क्स। बट आप मेडिटेशन करते हैं बिकॉज़ आपका मन अशांत है, आप परेशान हैं, आप अपने आप को ढूँढ रहे हैं, तलाश रहे हैं और आप अपने आप को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो श्योर शॉट इंडिकेशन है कि आप प्री डिप्रेशन या प्री आई विल से मेंटल स्टैमिना के उस दायरे में आ चुके हैं, जो आपको अब परेशान भी कर रहा है। मेरी जो क्लासेस हैं उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ो, अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड करो। स्टोरीज़ में मेरे रिस्पॉन्सेज़ कैसे आ रहे हैं, आप अगर सिर्फ़ इस तरह से तैयारी करेंगे और आप फटाफट स्टोरीज़ लिखेंगे और आप 10 लोगों को भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, बताओ भई इट वोंट वर्क। पहली बात तो जो ग्रुप में डाल रहे हैं, वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, वो उस तरह से ही एनालाइज़ कर देंगे। पहले तो ये, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपके ज़हन में विचार क्या आते हैं? अगर पॉज़िटिव हैं, अगर जोश टाइप हैं, अगर एनर्जी है, अगर है ना? तो आप वैसे दिखेंगे। अगर डर है, भय है, संताप है, कष्ट है, वैसे नहीं। कृपया इस पे काम कीजिए, बात कीजिए इस पे, मुझसे कनेक्ट कीजिए अगर आप चाहें तो, और मेरे सेशंस को जॉइन कीजिए या मुझसे आप इंटरव्यू शेड्यूल कराइए अपना। हम उस पे बात करेंगे, देखेंगे कहाँ पे फँसा है मामला, एंड देन वी विल बी एबल टू वर्क। बट काम तो सिर्फ आपको ही करना है।
मैं एक मार्गदर्शक की भूमिका ज़रूर निभा सकता हूँ, परंतु उससे ज़्यादा मेरा रोल और किसी का भी ज़्यादा रोल नहीं हो सकता है। द बेसिक infra of working is with you. My job is to tell you. And if you are able to get it right, many people have got it right who got recommended, you will also be recommended. So, on this note, and with lots of good wishes, I say goodbye. Thank you. जय हिंद. आपका सपोर्ट इस चैनल को बढ़ाने में, इसको शेयर करने में, इसको सब्सक्राइब करने में मेरी आपसे ये दरख्वास्त जरूर रहेगी. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.